नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं आज एक आपका नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो आपने 9th क्लास में भी किया था। आइए आज कुछ और बातें सीखें। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इन डेली लाइफ we come across many situations where we cannot decide the result. We say that I doubt it will rain today. Chances are high that boss will agree to increase my salary. Probably there will be no pollution tomorrow. Or in current scenario, we can say probably there will be vaccine from next month. There will be no corona from next year. There will be reopen the school from next month. There are so many probabilities. So in mathematics, we can measure the uncertainty of happening or non happening, whatever, of situations. Probability is the numerical value given to the uncertainty. It means in probability, there is doing an action, tossing a coin, throwing a dice, and pick up some slips. These are the trials. Result of this action, these are the outcomes. And collection of sum of outcome, this is the event जो हमें स्टडी करना है। एंड इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो मैथमेटिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, बिकॉज इवेंट फर्स्ट लेटर इज ई, देयरफॉर वी डिफाइन पी ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एनी इवेंट defined as PE, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. जो टोटल आउटकम्स है वो हमेशा आपके डिनोमिनेटर में होंगे, और फेवरेबल का मतलब है जिसकी हम इवेंट की बात करें, इवेंट वट एवर जो क्वेश्चन में दिया होगा। द नॉन हैपनिंग ऑन इवेंट इज PE डैश और PE बार आप कह सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस PE, बिकॉज द सम ऑफ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। तो सम फैक्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, आइए थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन एंड ग्रेटर देन 1। ये थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया, कैन नेवर बी लेस देन 0 आना चाहिए था, यहाँ आप 0 लिख लीजिए। कैन नेवर बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1। तो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ फिर 0 कहीं छूट गया है, 0 एंड 1 आप करें। इट मे बी 0, इट मे बी 1, एंड ऑलवेज between lies 0 and 1. The sum of the probability of all the possible events of a trial is always equal to 1. The event that cannot happen is called impossible event. The probability of an impossible event is always 0. And the event that is certain to happen is called possible event. Possible नहीं, actually इसको हम बोलते हैं sure event, and the probability is 1. श्योर इवेंट की श्योर है, होना ही होना। पॉसिबल तो कोई चीज़ है, बट यहाँ एक्चुअली टेक्निकली हम जब बुक्स में पढ़ते हैं तो श्योर इवेंट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी 1। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। वी हैव अ बैग कंटेनिंग 14 पिंक बॉल, 11 blue balls and 15 yellow balls. Trying a ball from the bag, this is the trial. Ball comes either pink, blue or yellow, these are the outcomes. Getting a ball of any color, whatever the given the question, this is the event. And getting red color ball, when we find the probability of red color ball is 0 because there is no red ball in the bag, therefore this is the impossible event. And probability of any ball means अब कुछ तो ball है ही, तो that is the sure event, उसकी probability 1 होती है। So let E1 getting a pink ball, E2 getting a blue ball, E3 getting a yellow, whatever the name, आप कुछ भी रख सकते हैं, और इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे पिंक है 14, तो 14/40, ब्लू है 11 बॉल, तो 11/40, येलो बॉल 15 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इज 15/40, एंड द एडिंग ऑल 3 मस्ट बी इक्वल टू 1, and the PE4 means red ball, there is no red ball, therefore the probability is 0/40. Now some simple questions are there. List all the outcomes of choosing a day of the week satisfying with letter W. तो W से आप समझ सकते हैं क्या लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आया तो आप यहाँ वेडनेसडे लिख सकते हैं, वेडनेसडे। व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इज टू परचेज ए कार फ्रॉम बाइक शोरूम? ओ, ये आपका कौन सा हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज बाइक शोरूम में से कार नहीं खरीदी जा सकती, आप इसे इम्पॉसिबल इवेंट लिखें, तो ये हुआ इम्पॉसिबल इवेंट।
Ravi and Deepak are playing a game. The probability of Deepak winning the game is 7/9. Then find the probability of Ravi winning the game. 7/9 means 9 टाइम्स में से 7 आप जीतेगा दीपक. इट मीन जो बाकी बचे उसमें रवि जीत रहा है. तो 9 में से 7 लेस करें, 1 माइनस 7/9 भी आप लिख सकते हैं. दिस इज 2/9. तो आप यहाँ लिखेंगे 2/9. तो 1 में से घटा के लिखें, डायरेक्ट लिखें. फिल इन द ब्लैंक्स का है तो पूरा लिखना है तो 1 माइनस 7/9 लिख के आप लिखें 2/9. वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ होना था अधूरा लिखा हुआ है. ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कहना चाहिए, वो 1 में आ जाएगा. लेस देन और इक्वल टू ऐसा आना चाहिए. एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ये आना चाहिए 0. तो 0 या 0 से ग्रेटर देन होगा, 1 और 1 से लेस देन होगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर बर्थडे टू बी प्राइम नंबर. ओ, अगस्त के मंथ में प्राइम नंबर कहाँ कहाँ हो सकता है, ये यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं खाली पेज पे काम. अगस्त के मंथ में 31 डेज होते हैं. प्राइम नंबर कौन कौन सी डेट हुई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 and 31. Total numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, तो 11 are prime number. Therefore the probability is, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं ये आपके 11 हैं. एंड टोटल कितना है? 31 डेज इन दिस मंथ. तो आंसर इज 11/31. दिस इज द प्रोबेबिलिटी वट एवर द इवेंट जो भी हमने कहा कि उसका बर्थडे का. तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट थी, आप इसे इजीली कर सकते हैं. पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. अपना ध्यान रखें, बीमारी से बच कर रहें, साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें, दूर रहें. फिर मिलते हैं. नमस्ते.